Hi, hello students. Today I am delivering you the lecture 4th of your chapter 1, that is basics concept of chemistry here. And today's topic is empirical and molecular formula here. So this is one of the very important topic of this unit, that is how we can create a molecular formula or empirical formula of different element whose composition has been given to us here. So let's start with this one here. First we are going to here, first we have to calculate the percentage composition of each and every element in a molecule here. So when we have हमारे पास जब भी कोई एक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें हर एक एलिमेंट की डिफरेंट कंपोजिशन होती है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, this is we have to study in this topic here, that is calculation of percentage composition. The percentage of any element or constituents in a compound is the number of parts by the mass of that elements or constituents present in the 100 part by mass of that compound है कि हमारे पास जब भी कोई एलिमेंट होगा उसकी जो अमाउंट होगी, यदि कोई भी एलिमेंट होगा जो कंस्टिट्यूएंट्स उसका क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास है कि हमारे पास जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज वी हैव वाटर मॉलिक्यूल है एंड समवन आस्क मी what will be the composition of hydrogen molecule in water here, and that is called as the percentage composition here. So that means see how many parts of hydrogen we have in the oxygen here, that is, and if we consider total mass 100, then it becomes 100 parts by mass of that compound here. So for that उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो विद नंबर ऑफ स्टेप टू कैलकुलेट दिस वन हियर. फर्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स फार्मूला just by adding the atomic mass of each element here, ठीक है, or atom here. Step second, calculate the percentage of element are constituted by applying the relations here. So for that we have a specific relation जिससे हम उसको क्या करेंगे, calculate करेंगे. So in this we have, for example, we have to calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen here. For that we have three elements here. First is carbon, second is hydrogen and third is oxygen in ethanol here. And if we know, you people know better the formula of ethanol, that is C2H5OH here, that we have 2 times carbon, 6 times hydrogen and 1 time oxygen here. So this is the formula of ethanol and we have to calculate you can say its composition here. So for that here what we need here, we need first द मास ऑफ द इथेनॉल है. तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल. तो एज आई राइट डाउन हियर, दैट इज द फार्मूला ऑफ इथेनॉल. सो व्हेन वी आर कंसीडरिंग द फार्मूला ऑफ इथेनॉल, इट इज 2 टाइम कार्बन. तो इफ इट इज 2 टाइम कार्बन, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 टाइम हाइड्रोजन, 1 into 6 प्लस वी हैव 16, दैट इज ऑक्सीजन हियर. ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इथेनॉल एंड यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करें, उसका मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो 2 into 12 24 प्लस 6 24 प्लस 6 30 एंड प्लस 16, दैट इज 46 एंड 46 विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इथेनॉल हियर. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आपका इथेनॉल का हमें पता चल गया वो कितना है, दैट इज अबाउट 36 है. तो 36 है, सॉरी 46. So what we have to calculate the percentage mass of each and every element here. So mass percentage of carbon, as I told you, it is 24 and divided by the 46 here. So according to definition what we do, it is the percentage, ठीक है, number of parts है. तो हमें number of parts इसको calculate करना है. तो जब number of parts होगा तो हमारे पास क्या है, that is mass of carbon divided by molecular mass of the molecule multiply 100 here. We have to multiply 100 just to calculate the percentage है. तो percentage को calculate करने के लिए हम इसको 100 से multiply किया. तो what will be the composition of carbon in ethanol, that is 52.144% है. तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन जो इथेनॉल के अंदर है उसकी सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है. ठीक है, सिमिलरली वी हैव मास, that is mass percentage of hydrogen. तो mass of hydrogen that is 1 and total number of hydrogen is 6. So 6 divided by 46 multiply 100, it is 13.13. And similarly we have the mass of oxygen here,
एज आई टोल्ड यू 16 डिवाइडेड बाय 46 दैट इज वो 34.72 के। सो बाय दिस मेथड हियर, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल के। तो हर एक एटम्स की जो कंपोजिशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव दैट इज नो व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट वी गो विद द empirical formula, definition of that one here. The empirical formula is the chemical formula here, which just express the simplest whole number ratio of atom of various element present in one molecule of the compound here. इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास कहता है कि जो empirical formula है वो हमारे पास एक chemical formula होता है, लेकिन वो क्या बताएगा, just express the simplest whole number ratio of the atoms here. जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा। क्या बताएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, दैट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल, एज वी नो द फार्मूला ऑफ बेंजीन, द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 here and its simplest whole number ratio that is CH here. तो empirical formula benzene is CH है। Similarly हाइड्रोजन peroxide, तो हाइड्रोजन peroxide का फार्मूला क्या है हमारे पास, H2O2 है, that is hydrogen and oxygen and its simplest formula is HO है। And similarly we have glucose that is C6H12O6, तो इनकी अगर रेशियो देखें हम C6H12O6 की, तो वो क्या बन गई हमारे पास 1:2 है, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 के। तो दिस इज व्हाट वी हैव द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज कॉल्ड एज द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट है प्रेजेंट इन ए कंपाउंड है। नेक्स्ट वी हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड का क्या, इट इज ए केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास ट्रू मॉलिक्यूल फार्मूला बताता है किसी भी मॉलिक्यूल का। ट्रू का मतलब कि कितने उसके अंदर हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ टाइम्स ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, ये आपके पास है बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला आपको पता है C6H6 होता है, तो यहाँ पे हमने बना दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है। लेकिन पीछे हमने एम्पिरिकल फार्मूला की बात की थी, लेकिन वो हमारे पास इस तरह से नहीं था। तो एम्पिरिकल फार्मूला में क्या था CH, लेकिन तो हाँ इसमें क्या था CH था, लेकिन उसमें आपके पास क्या आ गया C6H6 से, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास दैट इज बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड वेयर एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इज H2O2 है, एंड वेयर एज दिस इज ग्लूकोज, दिस इज द रॉन्ग वन हियर, सो इट इज C6H12O6 है। दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज है, ठीक है। सो वेयर नो व्हेन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, so molecular formula can be calculated just by multiplying the empirical formula with the n value here, and n is any integer such as 1 2 3 4 here. And how we can calculate this n value here, this n value can be calculated from the empirical formula, okay. Now so n value of this one here, that is n value is calculated from that is empirical formula mass डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी, दैट इज सॉरी दिस इज व्हाट वी हैव, जस्ट ए मिनट, दिस इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय दैट इज इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम इंपीरिकल फार्मूला मास से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी n, और इस n वैल्यू को हम क्या करेंगे, वी हैव टू शो हेयर दिस n वैल्यू कैन बी मल्टीप्लाई बाय विद दिस n हेयर, n को हम क्या करेंगे इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बेंजीन के केस में हमने इंपीरिकल फार्मूला क्या निकाला CH
ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है C6H6, इट मीन्स जो N की वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पे क्या होगी, दैट इज 6 है, वो क्या होगी आपके पास 6 है, ठीक है। नो calculation of empirical formula. So for the calculation of empirical formula we have to proceed with number of step here. For the calculation of empirical formula we have to go with the number of step one by one here. First what we do in this step here, this can be expressed here. First convert the mass percentage into the gram, calculate the number of moles of atoms here. हमने उनके number of moles calculate करने हैं. Calculate simplest molar ratio, divide the mole obtained in step 1 by the smallest quotient or the least value from the amongst the value obtained from each element. Calculate the simplest whole numbers ratio here. So to express this one here, I have by certain example here. So we have an example that is calculate the empirical formula of the molecule whose composition is, that is hydrogen is 9.09%, carbon is 54.54% and oxygen is 36.36% here. तो इस परसेंटेज के साथ हम क्या करेंगे, इम्पीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे. तो इम्पीरिकल फार्मूला में जो हमने स्टेप स्टडी किए हैं उसमें क्या है, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द एलिमेंट, सेकंड वी हैव दैट इज सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, व्हाट वी हैव दैट इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विच इज गिवन, एटॉमिक मास विच वी नो, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, एंड कैलकुलेट के बाद हम क्या करेंगे उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे और सिंपलेस्ट हम क्या निकालेंगे, होल नंबर रेशियो के. फर्स्ट इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन विद द सिंबल परसेंटेज जो गिवन है वो क्या है 54.54 है और एटॉमिक मास इसका कितना होता है 12. ओके, नो 54.54 दैट इज द वेट ऑफ कार्बन के, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास है और एटॉमिक मास है. तो यहाँ से आपके पास क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन है. तो हमारे पास कितना आया 4.57, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के, ठीक है. तो सिमिलरली हाइड्रोजन की हमारे पास परसेंटेज कितनी है 9.09 एंड इसका एटॉमिक मास इज 1 एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स हम n लिखते हैं जनरली, तो n इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. तो जो परसेंटेज है वो वेट है, ठीक है, और जो उसका एटॉमिक मास है वो इसका मॉलिक्यूलर मास भी कंसीडर कर सकते हैं. तो जब इन दोनों को डिवाइड किया आपके पास क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स है. तो नंबर ऑफ मोल्स के केस में आपके पास देन वी हैव सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है. तो देन आपके पास ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन का हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स है. सो जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल गए, ठीक है, तो देन अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप हियर व्हाट वी डू, वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल मोलर रेशियो है. अब हमने क्या निकालना उसका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है. तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हियर व्हाट वी डू, वी हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स विद द लीस्ट वैल्यू इन द नंबर ऑफ मोल्स. दैट इज जैसे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू आई आपके पास, इसको हमने लीस्ट वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो तीनों के अंदर अगर हम देखेंगे व्हेन वी लुक एट दीज थ्री वैल्यू हियर दैट इज नंबर ऑफ मोल्स है, तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है हमारे पास दिस इज समवट कंसीडर टू बी, और आप जहाँ पे देख रहे हैं इट सीम्स टू बी लोएस्ट है, इट सीम्स टू बी लोएस्ट है. तो देन विद द ईच वैल्यू के वी हैव टू डिवाइड इट बाय द लोएस्ट वैल्यू के. दिस इज योर स्टेप थर्ड हियर, ये आपका स्टेप थर्ड है जो बता रहा है हमारे पास कि हमने इस स्टेप के अंदर क्या करना है. तो इस स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो डिवाइडिंग द मोल ऑब्टेन इन स्टेप 1 बाय द स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट हियर और द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम अमंगस्ट द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम ईच एलिमेंट हियर, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दें. तो जब डिवाइड करेंगे तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है 2.27 के. तो यहाँ पे आपके पास 4.47 डिवाइडेड बाई 2.27, 9.01 डिवाइडेड बाई 2.27, 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27 दैट इज 1 है. तो व्हेन वी कैलकुलेट हियर, व्हेन वी डिवाइड दिस वन हियर वी गेट द सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज 2, 4 and 1 here.
and this is also called as the whole number ratio of this molecule है। तो जब इसके हमारे पास वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, ठीक है, कौन सा फार्मूला, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस molecule, that is C2H4O1 here, that is carbon 2 time, hydrogen 4 time and oxygen single here। तो we can write this formula by this like this way, that is जो आपके पास 2 और 4 and numbers हैं वो हमेशा एज ए सब्सक्रिप्ट होंगे, दे ऑलवेज बी एज ए सब्सक्रिप्ट है। तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, C2H4 और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर पाए हैं जहाँ पे इम्पीरिकल फार्मूला। तो इम्पीरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू प्रोसीड बाय दिस मेथड हियर, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट, अब आपके पास मैंने तो कैलकुलेट कर दिया इम्पीरिकल फार्मूला, अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम, फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द एम्पीरिकल फार्मूला as already done in the previous one. Now next we have the molecular mass here, ठीक है, or molecular formula. Now we have calculation of empirical formula from the percentage composition, calculation of empirical formula mass by adding the atomic mass of each and every element present in the empirical formula. Step third, determination of molecular mass of compound from the given data है। तो जो डेटा इन्होंने दिया होगा आपके पास क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करते हो। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ आर राइटिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज यू कैन से एक्सट्रैक्ट आर यू कैन से कैन बी डिड्यूस फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। सो अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से डिड्यूस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास है दैट इज़ n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n कैलकुलेट करने के लिए हमने दो मेथड बताए थे आपको, पीछे मैंने बताया था कि जो n कैलकुलेट करते हैं जहाँ तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नो, अब हमारे पास एग्जाम्पल, वी कैन एक्सप्रेस होल ऑफ द स्टेप बाय सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट किया हुआ है। तो फर्स्ट, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.6% क्या है इसके अंदर, क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो फॉर दैट हियर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला है। सो फॉर दैट हियर we have again write down the carbon, hydrogen, and now we have chlorine rather than oxygen, we have the chlorine here. Then we know the percent atomic mass of chlorine is 35.5 and carbon is 12 and hydrogen has 1 respectively here. Now we have to calculate number of moles, as I already told you, n is equal to weight y, that is mass, weight means percentage, mass means atomic mass है, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी, 24.27 डिवाइड बाई 12 गिव अस द वैल्यू ऑफ 2.02 here. Similarly we have for hydrogen it is 4.07 and similarly we have chlorine, this is 2.02 here. And when we look at these three values here, that is number of moles, what we find, हमें कहाँ यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन और कार्बन की जो दोनों की नंबर ऑफ मोल्स है दे आर द सेम वैल्यू एंड दिस इज लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन है। सो व्हाट वी डू, अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लीस्ट वैल्यू से। तो इसको भी इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 तो वैल्यू इज 1 एंड सिमिलरली 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 वैल्यू इज 2 एंड सिमिलरली हियर वी हैव द 1। तो देन द होल नंबर रेशियो इज 1 to 1 के।
तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा आपके पास, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन दैट इज 1 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट इज CH2Cl है। दिस इज व्हाट वी है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, नाउ अब इंपीरिकल फार्मूला आने के बाद हम उसका क्या निकालेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मास। क्या निकालेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मास। तो वो आपके पास क्या होगा, 12 प्लस, क्योंकि कार्बन एक है तो 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 × 1 दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट इज 35.5 है। तो टोटल इंपीरिकल फार्मूला मास कितना हो गया इसका, 49.5 है। एंड अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, n वैल्यू है, बिकॉज वी नो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो n वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास है। तो मॉलिक्यूलर मास जो आपके पास है दैट वाज गिवन हियर, ये क्या आपके पास गिवन इन द क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है हमारे पास 98.96 है। तो अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, वहाँ जाके इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो 98.96 विच इज़ अ गिवन वैल्यू विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर मास, and this is we have 49.5 is the empirical formula mass है। तो mass of that is compound which was given and empirical formula mass, इन दोनों को डिवाइड किया, वैल्यू क्या है प्लस 2, एंड व्हाट वी डू वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2 विद द इंपीरिकल फार्मूला। तो आपके इंपीरिकल फार्मूला क्या था, CH2Cl2। तो ये क्या, जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे CH2Cl, तो वैल्यू शुड बी है C भी 2 हो जाएगा, H ऑलरेडी 2 है तो 4 हो जाएगा, क्लोरीन भी आपके पास क्या आएगा 2 हो गया, दैट इज C2H4Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज कंपोजिशन हैज बीन गिवन हियर, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इंपीरिकल फार्मूला mass of any compound as well as molecular mass formula of a you can see different elements whose composition has been given, ठीक है, and then we also get their you can say their molecular mass here, ठीक है बेटा। So we have another example here with the amount of carbon already given here. This is how we can calculate you can say the first we calculate the percentage of each and every element and then calculate the amount of this one here and then we calculate the empirical formula। तो अगर आपके पास अमाउंट दी है, जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन इज 3.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12/44 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 3.38 ग्राम है, ये आपके पास परसेंटेज अमाउंट निकल गए। अब इससे परसेंटेज अमाउंट को टोटल अमाउंट के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाला है इन्होंने, टोटल अमाउंट है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है। इस नई इक्वेशन में कहता है कि अमाउंट ऑफ कार्बन इज 3.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12/44 बिकॉज 12 क्या है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 इज द C का 12 होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस करें दोनों को तो हो गया 44 ग्राम है। तो इसको हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, जो अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास ये निकल गया परसेंटेज ऑफ दिस कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन की वाटर के अंदर उसकी भी इन्होंने परसेंटेज निकाली हुई है। देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक, तो बन गया हमारे पास टोटल मास ऑफ द कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें क्या आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड वो आपके पास क्या है 0.9281 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, ये आएगी 92.32, और हाइड्रोजन की रेस्ट जो है 7.68। तो इसको निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो 100 माइनस, क्योंकि 100 टोटल है, टोटल होगी, और आपने माइनस क्या कर दी 92.32 है, तो एक आपका स्टेप बढ़ जाएगा, जो आपके पास 7.68 यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलरेडी, इसका मास हमें पता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, या आप आगे तो इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई 1:1। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा इसका CH, इंपीरिकल फार्मूला क्या हो गया इसका CH। तो यहाँ से इन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाला है N से, तो N मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई इंपीरिकल फार्मूला 26/13 दैट इज 2 है।
तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी C2H2 है। लेकिन इसके लिए मॉलिक्यूलर मास हमारे पास गिवन होना चाहिए। अब गिवन नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। यहाँ पे क्या कह था हमारे पास, 10 लीटर ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वे अबाउट 1.6 ग्राम। तो 10 लीटर के अंदर इतने ग्राम हमारे पास क्या है, कोई गैस है। ठीक, अब 1 मोल कितना होता है 22.4, तो 22.4 लीटर के अंदर कितना होगा, दैट इज 11.6 डिवाइडेड बाय 10 हियर मल्टीप्लाई बाय 22.4 है, तो ये आपके पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 26 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे कि जो गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना 26 ग्राम है। तो डिवाइडेड बाय इंपीरियल फार्मूला मास से उसको डिवाइड करो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 है, तो ये हो गया हमारे पास दैट इज 13। तो इंपीरियल फार्मूला मास दैट इज CH दैट इज 12 + 1 = 13। तो यहाँ से आपने इसको क्या निकाल दिया, वैल्यू ऑफ n के साथ किया तो बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द molecular mass here. And another example we have here, how we can calculate the empirical formula by have a certain amount of the compound here. तो ये आपके पास क्या है, we have again that is C4H8O2 here. This is the molecular formula, you can calculate by this one here. Okay beta, this is all what we have in this you can say topic about that is empirical and formula, molecular mass, molecular formula. We can calculate it by number of steps one by one here, just putting up the percentage and atomic mass. So these two values are very important to calculate the empirical formula as well as the molecular mass here. Hope so you are enjoying this video, and you must like this one here, and hope so you are getting all these the things which I want to clear you through this video here. Stay home, stay healthy, and thanks a lot here. All the very best. Okay, enjoy beta.